ठीक है यार. So let's start. Let me share this screen. ठीक है. देखो रिकर्सन बेसिकली मैंने एक आइडिया दिया था इनफैक्ट लास्ट क्लास में. रिकर्सन क्या होता है, जब आप सपोज यू आर राइटिंग अ फंक्शन, ठीक है, और आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, यू ट्राई टू कॉल दिस फंक्शन. ये जो फंक्शन है आप इसी को कॉल कर रहे हो इस फंक्शन के अंदर से. दैट इज कॉल्ड रिकर्सन. समझ रहे हो? यू आर कॉलिंग वन फंक्शन फ्रॉम इनसाइड द function. Maybe this is a function 1, and suppose you are calling this function inside the function. Maybe this is you are calling this function 1 here inside the function. This is a recursion. Let's try to build a simple example. Just suppose see this. Suppose I want to build a recursion function where I am trying to calculate factorial 5. So basically factorial 5 is nothing but 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. This is the like thing we want to write a program using recursion. देखो मैं क्या करता हूँ, see, I'm just making a function diff. I'm giving a function name maybe f1, passing the data maybe that is x. X is any value, ठीक है प्रियंका, कुछ भी वैल्यू हो सकती है like 10 20 कुछ भी. And I'm saying if x is equal to 0, return 1. Return 1. So either you can write like this also, because ये problem है तो I write 1 also. So I can write if x is equal to 1, return 1. जब x की वैल्यू 1 हो तो return में 1 कर दो. Else I'm just doing else return x multiply f1 x minus 1. See, ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसी फंक्शन को कॉल कर रहा हूं फंक्शन के अंदर. इट मीन्स इट्स रिकर्सन. ओके, इट मीन्स रिकर्सन. देखो कैसे रन होगा. इफ आई कॉलिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शन f1 हियर, मे बी आई एम कॉलिंग f1 6. सी व्हाट हैपन, 6 विल गो हियर. यहां पे आएगा क्या, 6 1 के बराबर नहीं है, तो रिटर्न क्या होगा, दिस रिटर्न विल बी 6 multiply f1 5. Just you're calling like this, 6 multiply f1 5. Then again f1 5 again will reach here. 5 is not is equal to 1, then it's come to here and it will give 5 multiply f1 4. एक कम कर देता 4 हो गया. Now it's go to here and see 4 is not is equal to 1, तो यहाँ पे आएगा. Now it's giving 4 multiply f1 3. So basically what happened, every time suppose this one we are giving this. For this one it's giving this. For this one it will give like maybe 3 multiply f1 2. So in the final run जब से पूरा हो जाएगा तो definitely it become like this. 2 multiply f of 1, और f of 1 की वैल्यू 1 है, so that time will get 2 cross 1. Now we start replacing. आप पहले वाले को रिप्लेस करो अगर f1 5 को, तो f1 5 के प्लेस पे आएगा 6 multiply 5 into f1 4. f1 4 के प्लेस पे आएगा 4 multiply f1 3. f1 3 के प्लेस पे आएगा 3 multiply f1 2. ऐसे करके सारे फंक्शन जो होंगे रिप्लेस हो जाएंगे और फाइनली वी विल गेट दिस 6 multiply 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. This will output will get. Anyway, let's write this program. Let's see this. Let's open in Google Colab. देखो let's do the same thing. Let's connect this first. See, let's write this. Suppose I'm writing f1, I'm giving x will be any value. First I'm giving if
x is equal to 0, और यू कैन राइट 1 ऑल्सो कि 0 की हमें जरूरत ही नहीं है, 1 पे ही हमारा आउटपुट आ जाएगा. सो रिटर्न 1 एल्स return x multiply f1 x minus 1. See, let's run it. Now I'm giving any number, maybe I'm giving 5 here. See this? So 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. So हाँ ठीक है, फॉन्ट साइज स्क्रीन बड़ा कर दो, बट सो सिंपल ना, इट्स सो सिंपल. ठीक है अंकित, अभी जस्ट सी दिस. अंकित नाउ इट्स ओके. ओके, सो प्रियंका क्लियर? ओके, ट्राई टू ना एक बार और रिकॉर्डिंग देखना, ठीक है. थोड़ा सा फर्स्ट टाइम रिकर्सन पढ़ने में लगता है कि पता नहीं क्या चल रहा है, तो एक बार अभी हो गया ना, एक बार और रात को रिकॉर्डिंग्स देख लेना, ठीक है. सो देन इट विल बिकम मोर क्लियर टू यू, ठीक है. एक्चुअली रिकर्सन वेरी सिंपल टॉपिक. ऑलवेज थिंक लाइक दिस कि फंक्शन को वी आर कॉलिंग अगेन इनसाइड द फंक्शन. So whenever we try to write a function, just you are building a function, you are making any function and you are calling in this function inside the function. मतलब ऐसे हम लोग पहले बनाया diff x comma y, maybe नाम is f2 x comma y, and then here right suppose you are return x plus y and just you are calling f2 3 comma 4. So this is not a recursion, this is a simple 3 comma 4 you are passing and is returning 3 plus 4, so it will giving the 7. But recursion means actually loop, basically it looks like a loop. Okay, we are doing looping using recursion, but recursion is very helpful. Okay, sometimes very helpful, but actually data structure is not in this syllabus. Otherwise I can cover those topic why recursion is very important. Okay, but data structure is not in part of our syllabus, that's why I'm not covering in that detail. But anyway, see this. So here it's a simple function, but suppose I try to do like this. I'm writing like this again, diff f2 giving some number x y, and we are printing here, print x plus y, and then suppose I'm calling here again f2 x comma y. So what happened basically, this is again it's recursion, बट प्रॉब्लम इसकी ये रन होता ही रहेगा और बाद में जब थ्रेशोल्ड हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लूप, ये कोई कंडीशन नहीं है. सो सपोज यू गिव हियर f2 मे बी 3,4. सो व्हाट हैपन, एवरी टाइम विल स्टार्ट गिविंग 7 ओनली. सो व्हाट हैपन, फर्स्ट टाइम यहाँ पे जाएगा 4 + 3 7 आउटपुट में आएगा, फिर इसको कॉल करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर 7 आउटपुट पर देगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर कॉल करेगा. तो ये चलता ही रहेगा. प्रॉब्लम ये है, अदरवाइज अगेन इट्स अ रिकर्सन प्रॉब्लम. ओके, so this is basically recursion. Just so I gave this problem na in the class sometime. हाँ एक मिनट हेमंत ना, एक शुभम ने क्वेश्चन पूछा है. हाँ शुभम बताओ क्या कह रहे हो. कोई बात नहीं, आई विल डू इन द क्लास व्हेन आई विल कम टू ऑफलाइन. दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ना. सो इफ आई डू इट हियर ना, सम पीपल हु कम रेगुलरली इन ऑफलाइन ना, वो समझ नहीं पाएंगे. सो आई विल डू दिस क्वेश्चन इन ऑफलाइन. इट्स रियली गुड क्वेश्चन. एक्चुअली इंटेंशनली आई डिड वन क्वेश्चन ऑल्सो, वो पता नहीं किसी ने किया कि नहीं, वो भी क्वेश्चन दिया था मैंने. दैट इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन. सो देखो यहाँ पे ना हिमांशु कुछ बता रहा है, जस्ट ट्राई टू डू दिस, बट एनीवे आई विल गिव अनदर अप्रोच ना for such problem where it looks like two pattern, but we can combine two pattern to get one pattern. So I will do this in the class when we'll do offline class, क्योंकि कुछ बच्चे ऑफलाइन के अलावा समझ नहीं पाते ऑनलाइन में. सो दैट्स भाई ठीक है. ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सुमन, ठीक है. मतलब ये बढ़िया क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्ट बढ़िया है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया बनाएंगे अपन, ठीक है. ये तो सिंपल क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट जो इसके अंदर यूज होगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. हाँ हेमंत आप क्या बोल रहे थे बताओ. हम्म हम्म हम्म
देखो ये प्रॉब्लम से, ये देखो ये प्रॉब्लम से पता चलता है, ठीक है, ये प्रॉब्लम से ही हमेशा पता चलेगा, और ये चीज़ आती है प्रैक्टिस से। देखो क्या होता है बेसिकली व्हेन यू डू प्रैक्टिस, ये सब करोगे, जब से तुम क्वेश्चन देता हूँ कि एलसीएम लिस्ट के अंदर एलसीएम फाइंड करो, अब वहाँ पे आपको काउंटिंग करनी है। सो सपोज यू वांट टू काउंट, यू वांट टू डू काउंटिंग, मान लो यहाँ पर एक लूप लगाया, फिर इसके अंदर लूप लगाया, काउंटिंग आपको यहाँ करनी है, सपोज काउंटिंग आपको यहाँ करनी है, और ऐसा होना है कि जब यहाँ से दूसरा नंबर लेके आए फिर से काउंटिंग स्टार्ट हो, डेफिनेटली आपको k इक्वल टू 0 यहाँ लिखना पड़ा है। लेकिन और क्या काउंटिंग लूप में नहीं करनी, सिर्फ एक बार काउंटिंग करनी है, तो आप सारे लूप से बाहर कर सकते हो। तो काउंटिंग ये देखनी पड़ती है क्या हमें लूप में काउंटिंग करनी है या पूरे लाइफ में एक बार काउंटिंग करनी है, लाइफ का मतलब वो प्रोग्राम में, तो हम लूप से बाहर डाल सकते हैं। लेकिन अगर काउंटिंग लूप के अंदर करना है, दो लूप है, तो डेफिनेटली जिस लूप में काउंटिंग करनी है उसके ऊपर उसको इनिशियलाइज करना पड़ा है कि दूसरे लूप से नंबर लेके आए तो वापस से काउंटिंग को जीरो करें। जैसे वी आर डूइंग विद प्राइम नंबर लिस्ट में पूरे प्राइम नंबर फाइंड करना है, तो व्हाट वी ट्राई टू डू, जो वहां पर दूसरी बार हम चेक कर रहे होते हैं उससे ऊपर काउंटर डालते हैं, क्योंकि जब दूसरा नंबर लेके आए तो फिर से काउंटर को जीरो करे, तीसरा नंबर लेके आए प्राइम नंबर चेक करने के लिए तो फिर से काउंटर को जीरो करे। दैट डिपेंड्स ऑन प्रॉब्लम एंड इट विल कम्स विथ प्रैक्टिस, लाइक जितना प्रैक्टिस आप करोगे ये क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली दूर हो जाएंगे, ठीक है। सो इट विल टेक टाइम एंड इट ऑनली डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस कि हाउ मच यू आर गिविंग योर टाइम टू सच प्रॉब्लम, ठीक है। बट मतलब ये बहुत ही ये चीज जो तुम पूछ रहे हो ये पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये खुद ही डेवलप होती है जब तुम प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक लेवल ऊपर की बात है कि कहाँ पे डाले, ये क्वेश्चंस करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो बट एनीवे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो वापस से उन क्वेश्चंस को, तो तुम्हें आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि या मुझे ये यहाँ पे डालना है तो के को इसके ऊपर इनिशियलाइज करना चाहिए, ठीक है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे, मतलब मैंने देखा मतलब बता रहा हूँ कुछ बच्चों को जो कंटिन्यूअसली ना, मतलब जहाँ से भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, इवन जो वीकेंड वाले हैं वो मतलब क्या करते हैं, रेगुलर्स की रिकॉर्डिंग देख लिए, रेगुलर वाले वीकेंड्स की रिकॉर्डिंग देख लिए, और ऐसे करके ना क्वेश्चंस बढ़ा करके, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूँ ना बहुत अच्छे बच्चों का आता है, जैसे जो लगातार कर रहे होते हैं ना उनको दिक्कत आती है, जो पढ़ ही नहीं रहा उसको तो दिक्कत नहीं आती, जो पढ़ता है उसको दिक्कत आती है कि यार ये जीरो कहाँ रखे कब रखे। बट ये टाइम लाइक लगता है थोड़ा सा, मतलब 1 महीना 2 महीना, और लगातार करो नहीं मन तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें दूर हो जाती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा करो, बट एनीवे तुम कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी तुमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, बीइंग अ सिविल, बीटेक इन सिविल तुमने काफ़ी इम्प्रूव किया है, तो काफ़ी जल्दी हो जाएगा ये प्रॉब्लम दूर, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, एनीवन? हाँ पूछो। मिनिमम नंबर नहीं पा रहा है, देखो इधर, लेट्स डू दिस। सपोज यहाँ पर एक लिस्ट है, मे बी इसमें नंबर है 3 4 1 10 0, ठीक है, and I want to find the minimum number in this list. So let's try to write a program for that, okay. So I'm taking any variable, maybe I'm taking k, okay, just as a variable, and I'm giving k is equal to x of 0. So you can ask why x of 0, basically we can take any variable, but x of 0 is very important. Why? Suppose you take any random number, maybe you're taking like, let's take k is equal to 0, but what happened, maybe in the list there is a negative value, -5. So definitely that time -5 is minimum value, okay, so you'll get the result. But suppose here there is no minus, even there is no 0, now it's 10, okay, in this list this is 10, and now you put x is equal to 0. If you write the program, you'll in the end of the program you'll get 0 only, because it's going to compare with 0 and 0 is not in the list, so basically it will return 0, okay. So इसलिए अपने को क्या करना है, always take any number from the list, so that's very important. Always जब भी आप variable लो आप उसी list से ले लो, even for maximum number as well, okay. So let's do this again. So take a variable maybe is k, and I am giving k is equal to x of 0, okay. I am giving k is equal to x of 0, x is a list, let me write here a list,
सो मे बी लिस्ट में वैल्यू है 9, 10, -1, 2, -5 and 0 and 6. Suppose this is a number and I want to write a program for this to find a minimum number. So I'm giving k is equal to 0. Just see this. I'm writing for I in x, है ना. अगर आप लोग for I in x, suppose this I is 9, first time 9, then 10, ऐसे करके पकड़ेगा. अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ if I is less than k. अगर मेरी वैल्यू k से छोटी होती है तो उसी k में उस वैल्यू को पुट कर देते हैं अपन. ठीक है, तो मैं पहले एज्यूम क्या किया कि जो पहला नंबर है वही सबसे मिनिमम है. सो दैट्स व्हाई आई गिव k is equal to x of 0. So I will try to assign k is equal to 9. Okay, and now I am checking, I am comparing 9 with all other data. Okay, suppose any data is less than 9, so what I am trying to do, I am put that data into the k. Okay, just so simple. So here you can see I am doing for I in x. If I is less than k, it means if 9 is less than 9, then put k is equal to 9. But here 9 is not less than 9, क्योंकि वो तो satisfy नहीं करेगा. तो next number पे जाएगा, it will take 10. So क्या 10 less than 9 है? नहीं, again नहीं है. फिर ये condition true नहीं हुआ, अगला number लेके आएगा, this is -1. क्या -1 9 से छोटा है? Yes है. Then it will put k is equal to -1. Just see. Okay. Then it will put k is equal to -1. Again it will go for 2. 2 तो -1 छोटा है नहीं. -5, yeah, -5 is less than -1. So k become -5. Now it's checked to 0 and 6. In both case, this will not true. So definitely end of the program, k is basically -5. Done. किसने पूछा था? क्लियर हुआ है मिनिमम वाला प्रॉब्लम? किसने पूछा था मिनिमम? क्लियर हुआ आपको? Okay, so let me write in the program as well. See, let's read this. Let's give a list. Maybe that list have maybe 3. हाँ, but sort करने की जरूरत क्या है? Sort करके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. But what is मतलब needed क्यों है? विशाल ना? हाँ, but विशाल. हाँ, तो sort तो करोगे ना पहले. तो सॉर्ट करना आसान काम है क्या? अच्छा, वो तो तुम डॉट सॉर्ट फॉर्मूला लिख रहे हो ना. सॉर्ट करके दिखाना मेरे को, तो लूप से कंपेयर करना पड़ेगा, फिर सॉर्ट करना पड़ेगा ना. तो इवन सॉर्ट विल टेक मोर टाइम, अगर टाइम कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो. ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास आई ऑलवेज टोल्ड यू, डोंट ट्राई टू यूज फॉर्मूला. ओके, try to write a program and try to get the actual उसका फ्लेवर क्या है. ठीक है, केवल अभी तो मैक्सिमम का भी फॉर्मूला है. जस्ट पुट मैक्स हियर, आई थिंक मैक्स विल वर्क हियर, इवन मिनिमम विल आल्सो वर्क हियर. सो मैं इतना फिर फोकस क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना एनर्जी क्यों लॉस कर रहा हूँ, अगर यही करना होता तो, है ना. बट दिस इज नॉट अ थिंग ना. यू आर गोइंग टू सपोज यू आर गोइंग टू गिव अ इंटरव्यू फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर, मे बी पाइथन डेवलपर. So people don't ask write max, I mean, na. Okay, so right here for I in x, and we give any number, suppose k is equal to x of 0, then put if I is less than k, so then k is equal to I. Just come outside the list and write print k, and see this, you'll get the -5. ठीक है, क्लियर हुआ यार? किसी ने पूछा था, क्लियर हुआ? जिसने पूछा था मिनिमम का प्रॉब्लम. डन. और किसी को कुछ डाउट कहीं पे भी? अंकित क्या पूछे, रिकॉर्डिंग में एक क्वेश्चन देखा था सर, 123 एक नंबर था, इसमें से एक को निकालने का था, एक बार बताओ. एक को निकालने का था, ये कौन सा क्वेश्चन है? रिकॉर्डिंग में देखा इसमें 123 में से, नहीं, एक को निकालना तो खैर इजी है, बट अगर वो भी होगा तो भी अंकित, उसमें देखोगे ना, उसमें एक ही लॉजिक है. लाइक
not able to recall the question, but anyway, see, logic is very simple, Nikit. What you have to do, if you give the reminder, no, always time, अगर एक बार रिमाइंडर करोगे तो लास्ट वाला नंबर हट जाएगा. देखो यहाँ पे see, not reminder, no, we have to give like this, sorry, give this one, so we'll get 12 here. Just see, now if I again do this 12 10, so 2 times number of digits से एक कम चलाओ तो you'll find your first digit number. Okay, first digit मतलब कि लेफ्ट साइड से, ठीक है. सो इसमें कुछ है नहीं, है ना, बस एक लॉजिक था छोटा सा, बाकी इसमें बहुत आसान है, इसमें कुछ है नहीं. बट अगर क्वेश्चन एग्जैक्टली देखूंगा तो बता दूंगा कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था. कराया होगा ना वो तो, कि केवल क्वेश्चन दिया था यूट्यूब पे, मतलब रिकॉर्डिंग में कराया है या फिर केवल क्वेश्चन दिया था? अच्छा, नहीं बन पाया था क्या? अब मुझे याद भी नहीं है क्या था वो. अच्छा, वो तो जब जो पार्ट छोड़ा था वो तो आसान था, वो तो सिर्फ ऐड वाइड कुछ करना बच गया था. तो तुम्हें तबीयत खराब है क्या विशाल? हाँ, वो तो आसान हो गया. तुम्हें तबीयत खराब है क्या? अच्छा, थोड़ा सा टेक केयर करो. हाँ जी, और किसी को कोई डाउट इसमें कहीं पे पूरे अब तक में? विशाल, आशीष है क्या? आशीष, आशीष कोई डाउट है आशीष? ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी तक में? एनीवन? ठीक है, देखो, सोच लो, एक बार डाउट है तो पूछो. कल अपना टेस्ट होगा, ठीक है. सो आई विल लाइक, आई एम क्रिएटिंग द, आज ही बनाऊंगा पेपर, ठीक है. थोड़ा सा पेपर बढ़िया बनाऊंगा, तो प्लीज़ एक बार रिवीजन होगा, ढंग से कर ले. और प्लीज़ टेस्ट सभी लोग दें, ठीक है. कुछ लोग टेस्ट नहीं देते, ठीक है. क्या करते हैं मैं बता रहा हूँ ना, अगर सीधे कल, आज नहीं अब देखो, अभी तक किसी ने नहीं बोला होगा कल मैं क्लास अटेंड नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैंने बोल दिया, अब आज बोल दिया कल टेस्ट है, देखना ना शाम तक ना कम से कम, अगर 23-22 लोग इस समय है तो 10 लोग तो बोलेंगे कि सर कल काम है, कल ना ये एग्जैक्टली इधर होना है उधर होना है. अब मतलब 12-13 लोग पेपर देते हैं, तो मतलब कोई मतलब नहीं बनता एक्चुअली. थोड़ा दो, मतलब सभी लोग दें पहले तो, ये है ना, ये बहुत ही गंदी बात है यार. मतलब अभी और कल क्लास होती तो सब लोग आते, ये बड़ी बात है, तभी नहीं होता है. लेकिन अगर वो बोल दें और उसी दिन टेस्ट लो तो क्या होता है, टेस्ट टाइम पर किसी काम आ जाता है. तो ऐसा ना करें प्लीज़ ना, थोड़ा सा इसको अवॉइड करें. सभी लोग टेस्ट दो, मैंने बताया भी था कि मैं लूंगा टेस्ट एक दिन. सो लेकिन आप लोगों का चूंकि एक टेस्ट ले चुका हूं तो डेफिनेटली ये थोड़ा बेटर टेस्ट होगा, मतलब बढ़िया क्वेश्चन बनाऊंगा, ठीक है. हाँ पूछो. हाँ हाँ, देखो एक्चुअली ना बहुत आसान चीज, देखो क्या है, अगर कोई यहाँ पर लिखा है सपोज जस्ट सी दिस, इंडिया विल विन, ठीक है. दिस इज द सेंटेंस. अब ध्यान से तुम देखना, सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूं x 0 से 1, देखो क्या होगा, क्या आएगा? आई गेट आई ओनली ना, क्योंकि हमने लिखा है 0 से 1 तक, मतलब 0 से लेके 1 तक. लेकिन सपोज अब राइट हियर 4, ध्यान से देखते रहना. अब मैं लिखता हूं 4 यहां, देखो 0 1 2 3, ठीक है. देखना विशाल, ये ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2, देखो देखो यहाँ पे लिखता हूँ 2. अब देखो मैंने लिखा 0 से 4 तक, लेकिन स्टेप कर दिया 2. देखो आई के बाद एन नहीं आया क्योंकि स्टेप 2 है. तो देखो हमेशा क्या करता है, 2 का मतलब अब ना आई के बाद दूसरे पे जाएगा, तो एन पहला है दूसरा डी है, तो स्टेप साइज 2 हो गया. ऐसा समझ में विशाल? चलो मैं इसको 6 करता हूं और थोड़ा बड़ा करता हूं, लेट्स सी दिस. अब देखो 6 हुआ तो जी, अगर मैं इसको हटा दूं, सी दिस, इसको मैं हटाता हूं पहले तो. 0 to 6 देखो कहां तक आएगा, 5 तक आएगा. सर देखो आई आ गया, एन आ गया, डी आ गया, आई आ गया, ए आ गया, एक पूरा आएगा. 0 to 6 सही है आशीष? नहीं, यहां तक जाएगा ना, ये 5 यहां पे आएगा. 0 1 2 3 4, हाँ एक स्पेस मिलेगा, तो सही ले रहा है, ठीक है डन. अब मैं क्या करता हूं, लिखता हूं, अभी देखो स्टेप 1 है, 1 स्टेप का मतलब हर अगला नंबर रहता चला गया वो. लेकिन अगर मैं स्टेप यहां पर 2 करता हूं, देखो अब क्या हुआ, सी दिस, आई के बाद देखो एन गायब होकर डी आएगा.
डी के बाद आई क्या बोलोगे, ए आएगा। देखो बाय डिफॉल्ट वन है, उस दिन मैंने बताया भी था, बाय डिफॉल्ट इट इज वन। सीरीज बाय डिफॉल्ट इट्स वन। इवन इफ यू यहां से आप हटाओ तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो है। देखो और देखो अगर इसको हटा दोगे तो बाय डिफॉल्ट लास्ट है। देखो बाय, अगर तुम हाँ इसको हटा दो, सबको हटा दो, इसको टू कर दो, तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो है, बाय डिफॉल्ट ये जीरो है, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट है, और स्टेप साइज टू तुमने कर दी। देखो ठीक है, गुड, ठीक है। और किसी को कोई डाउट, एनीवन? हाँ पूछिए। अच्छा ओके यार, मैं ना आज ही भेजता हूँ, जिस चीज ने मुझे भेजा है ना, चलो मैं आज ही भेजता हूँ पेपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा ना घर आया हुआ हूँ, तो थोड़ा सा ना वो चल रहा था, बिजी चल रहा था, मैं भेजता हूँ आज ही, ठीक है। कुछ आना नहीं चाहिए, बस पेपर पढ़ने आना चाहिए। बाकी तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पाइथन आता है, बाकी मैं जितना रिक्वायर्ड, एक मिनट रिकॉर्डिंग बंद कर लूँ।